جب یہ لوگ جو ہے احتجاج کر کے ہاؤس سے واک آؤٹ کر چکے ہوئے تھے، میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے، جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو۔ یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے، اور یہ مجھے بول نہیں رہے، یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا، آپ نے خود سنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ شرم آ رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات سنیں، ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں۔ ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو۔ اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں، ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے۔ اور جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونڈ رہے ہیں، اس آواز کا گلا گونڈ رہے ہیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات نہ ہو سکے۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا، اس ہاؤس میں جواب دوں گا، لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں، قتل عام کریں، بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں۔ آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی۔ لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا، متحدہ موقف کا اظہار کرے۔ سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے، اور اس موقع اور ایک موقف کے ساتھ اپنے اقلیتی بھائیوں کو، اپنے عیسائی بھائیوں کو،
अपने हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, अपने पारसी भाइयों का, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। जनाबे वाला, मैं दूसरा मसला जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने, आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई, जब जो है पेशावर वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई, उसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती रही। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मुफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज़ है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। ये आज भी 9 मई के मौक़िफ़ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है जनाब स्पीकर, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये इसका वाकई जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें, गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तज़लील करते हैं, इस हाउस की तज़हीक करते हैं। ये करें बातें, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्क की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईवान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं हमसे टिकट मांगते थे, मैं उनका सिफारशी था, हमारी क़यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज खड़े होकर हमें गालियां देते हैं। मैं इस हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ आपको कह रहा हूं, इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। This house is going to take a break for 1 hour. We meet 2:15 again. Thank you.
डिप्टी स्पीकर की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये ऐवान में हमें सिर्फ गालियां दे रहे हैं, नई गालियां निकाली जा रही हैं। कल गालियों का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि नई गालियां दी जा रही हैं। अक़लियतों को कत्ल किया जा रहा है, अक़लियतें गैर महफूज हैं। मैं इस ऐसे मसले पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत सेंसिटिव मसला है, लेकिन अपोजिशन हमें बात नहीं करने दे रही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े ऐवान में बात करें तो ये गला घोंट देते हैं। इस मसले पर बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ सियासी मफादात चाहते हैं और सियासी मफादात की खातिर ही एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो लीडर इस वक्त इनका जेल में है वो रोज़ पैंतरे बदलता था, कभी पाँव पड़ जाता था और कभी लंबी एक्सटेंशन भी दे देता था। उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन हमें गालियां दे रही है और कह रही है कि तुम्हारे बाप का हाउस नहीं है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। जब वो इज़हार ख्याल कर रहे थे तो अपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा किया जा रहा था।